چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے کچھ شیئر کروں، اور اس کا ٹاپک یہ ہے کہ خدا کی حضوری کے کام۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب یسوع آپ کی زندگی میں آتا ہے، جب اس کی حضوری آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر آپ کی زندگی سیف نہیں رہتی۔ جب یسوع آپ کے اندر ہوتا ہے تو پھر آپ نہیں ہوتے۔ ہاللیلویا۔ تو آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے کہ جب خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر کیسے بڑے بڑے جلالی کام ہوتے ہیں، پھر ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر ہم نیا مخلوق بن جاتے ہیں جب اس قادر مطلق باپ کی حضوری میں ہم رہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو سب سے پہلے میں کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی پہلی 7 آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ خدا کا خادم پاسٹر قمر اس کی تلاوت کرے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں کچھ یوں مرتا ہے۔ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس نے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا، اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہیم سر نگو ہو گیا تو خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ آمین آمین آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کا خدا شکر ہو، اس کی تعریف، اس کی تمجید، اس کی تعظیم ہو۔ لکھا ہے کہ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں۔ ہاللیلویا۔ وہ خدا قادر ہے۔ کون خدا قادر ہے؟ ہاں، چلا نہ کرے، بولا کرے، کیونکہ آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں، اس کی پریزنس میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا منہ بنے گا، وہ آپ کو الفاظ مہیا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ یسوع المسیح خدا قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے۔ اگر آج آپ نجات پانا چاہتے ہیں، praise God، تو اس یسوع کو اپنے بدن میں لے لو۔ ہاللیلویا۔ اس کی حضوری میں آ جاؤ، اور جب ہم لوگ اس کی حضوری میں آئیں گے تو پھر ہم اس کے کیا دیکھیں گے؟ بڑے بڑے کام دیکھیں گے۔ تو پہلی بات جو خداوند ابراہیم سے کہتا ہے کہ تو میرے حضور میں چل اور کیا ہو؟ کامل ہو۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں کامل ہونا ہے، کیونکہ خدا کی حضوری ہمیں کامل بناتی ہے۔ پریز گاڈ۔ کتنوں کا ایمان ہے کہ خدا کی حضوری ہمیں کامل بناتی ہے؟ ہاللیلویا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود سے کامل بننا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن وہ کامل نہیں بن سکتے، کیونکہ ہمیں کامل بننے کے لیے خدا کی حضوری میں آنا ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آئیں گے تو پھر ہم برومند ہوں گے، پھر ہم کامل بنیں گے۔ خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ تو چل اور کامل بن۔ ہاللیلویا۔ تو سب سے پہلے تو آج خدا سے وعدہ کریں کہ ہمیں کامل بننے کا فضل دے۔ ہم کامل بننا چاہتے ہیں، ہم کامل بنیں گے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا کی حضوری میں آئیں گے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، وقت نہیں رہ گیا۔ یسوع دنیا پہ آیا اور اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ وہ تب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تب سے آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ بھی خود بھی آ گیا، اپنے خادمین کو بھی بھیجا اور مسلسل وہ یہی کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟
توبہ کرو क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। कितनों ने तौबा किया? अपने हाथ खड़े करें। कितनी अफसोसनाक बात है कि कितने कम हाथ उठे। इसका मतलब है कि हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं हम नजात याफ्ता नहीं है। माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जब आप तौबा करेंगे, जब आप यीशु पर ईमान लाएंगे, कलाम कहता है तब आप नजात पाएंगे। और अगर आपने तौबा नहीं की तो हाथ जुड़े हुए हैं, तौबा कर लो। अगर हम बगैर तौबा किए हुए दुनिया से रुखसत हो गए तो बर्बादी की रुखसती है, ना कि सलामती की रुखसती। और कलाम में लिखा है कि वहाँ जो लोग बगैर तौबा किए जाएंगे वहाँ पर ऊपर उनके लिए रोना और दांतों का पीसना है, और उनके लिए दो मौतें हैं। जो लोग खुदा में मरते हैं, जो लोग मसीह यीशु में मरते हैं, उनके ऊपर दूसरी मौत का कोई भी डंग नहीं है। हालेलुया। मेरा फोन किधर है? अभी हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे पास्टर भी ऑनलाइन होंगे, 15 मिनट आपसे बात करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने फ़ोन के बारे में पूछा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आज आपके लिए दुआ करें ताकि हम सब मिलकर बरकत पाएं। हालेलुया। तो तौबा करें मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है तुम भी क्या हो? हालेलुया। जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला कामिल है, तुम्हें और मुझे भी कामिल बनना है। और कामिल बनने के लिए हमें खुदा की हजूरी में आना जरूर है। जब तक हम खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे हम कामिल नहीं बन सकते मेरे बहनों और भाइयों। अगर हम इब्राहिम को देखें तो वो खुदा की हजूरी में था, है, और खुदा ने उसको कामिल बनाया। खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। और जो वो वादा करता है उसे वो पूरा करता है। हालेलुया। वो शकील नहीं है, ठीक है, वो इंसान नहीं है, वो इमरान खान नहीं है कि वादा करके पूरा ना करे, बल्कि वो खुदाबंदों का खुदा अजीम है, बल्कि वो कादिर मतलब खुदा है जो वादा करता है तो पूरा करता है। वो कहता है कि मैं जिंदगी के आखिर तक हमेशा क्या करूँगा? तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा। वो है, उसे पुकार कर देखे, उसकी हजूरी में आकर देखे, वो आपको कामिल बना देगा, वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो आपके अंदर कुव्वत भर देगा, ताकि ना सिर्फ आप बरकत पाए बल्कि आपके वसीला से आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके साथ यूनाइट लोग बरकत पाए। हालेलुया। तो हमें बरकत देने का वारिस बनाया गया है। हालेलुया। कितने ईमान रखते हैं कि वो बरकत के वारिस हैं? थैंक गॉड, थैंक गॉड। अगर आप बरकत के वारिस हैं तो फिर बरकत को ट्रांसफर करें और बरकत नजर भी आनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हमने इस मसबा पे 4 लोगों से खिदमत की और आज खुदा के फजलो करम से हमारे पास बहुत सारे खानदान हैं, क्योंकि वो जब चुनता है तो इस्तेमाल करता है, वो कामिल बनाता है। जब आप उसकी हजूरी में रहते हैं तो फिर आपके फल नजर आते हैं। आज हम हर इतवार को चर्च जा रहे हैं, घर में खादमीन को भी बुला रहे हैं, दुआएं भी करवा रहे हैं, शायद हम रोजे भी रख रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर दुख वही का वही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बहुत सारे लोग हैं, हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, हम रोजे रखते हैं, वो आसमान पर पहुंचते नहीं, हम दुआ करना चाहते हैं, रूह से प्रस्तिश भी करना चाहते हैं, लेकिन इब्लीस उसको चुरा के ले जाता है। क्यों?
क्योंकि हम कामिल तौर पर खुदा की हजूरी में नहीं रहते। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह के आगे से ना हटे। हफ्ते में कितनी दफा ये हमारे चेहरे के सामने आती है? ईमानदारी से बताइएगा। 7 दिन हफ्ते में होते हैं, कितनी दफा आप इसको पढ़ते हैं? आप में से रोज कौन पढ़ता है? और एक दिन में रोज कितने पढ़ते हैं? वेरी गुड, 3 4 5 लोग। लेकिन कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह के आगे से ना हटे, बल्कि तुझे हर वक्त इसका क्या रहे? ध्यान रहे। तो जब हम खुदा की हजूरी में नहीं रहेंगे, जब हम कलाम को पढ़ेंगे, दुआ में रहेंगे, तो फिर हम खुदा की हजूरी के क्या करेंगे? काम को देखेंगे, जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? खुदा की हजूरी के काम। और पहली बात जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की या सिखा रहा हूं वो ये है कि खुदा की हजूरी में जब आप रहते हैं तो वो आपको कामिल बनाता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से हम अय्यूब को देखते हैं। वो हर हालत में कामिल इंसान था, वो हर हालत में कामिल रहा क्योंकि खुदा ने उसे जोर बख्शा, क्योंकि उसने खुदा से दिल लगाया और हर हालत में खुदा की शुक्रगुजारी की। अगर वो दुख में पड़ा तो भी वो ईमानदारी से उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। कलाम में लिखा है कि शुक्रगुजारी करो, बल्कि हर हाल में क्या करो? खुदा की शुक्रगुजारी करो। और वो करता रहा, उसकी औलाद छिन गई, फिर भी वो शुक्रगुजारी कर रहा है, खुदा की हजूरी में है। उसका रुपया पैसा, उसकी हर चीज उससे छीन ली गई, फिर भी वो खुदा की हजूरी में रहता है, खुदा की शुक्रगुजारी करता है। आज अगर हम हमारी जिंदगी में काम नहीं होते तो हम दूसरे दर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। माजरत के साथ, अगर एक पादरी हमारे लिए दुआ करता है और उसकी दुआ सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन इस बात को जरूर कहता हूं कि आपका ईमान कहाँ है। अगर उसकी दुआ से आपका काम नहीं होता तो आप दूसरे पादरी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप ईमान से उस बात को अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं करते। आपके चेहरे पे खुदा की तसल्ली, खुदा का इत्मीनान नहीं होता। अय्यूब किसी दूसरे दर पे नहीं गया, वो किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करना शुरू नहीं हो गया, बल्कि खुदा की हजूरी में रह के खुदा ही की परस्तिश करता रहा और खुदा ने उसे कामिल बनाया। प्रेज़ गॉड। उसकी बीवी कामिल नहीं थी, बल्कि वो उसको ये कह रही कि तुझसे छोड़, किस खुदा की परस्तिश कर रहा है? लेकिन वो खुदा की हजूरी से भागा नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, वो खुदा की हजूरी में रहा और खुदा के बड़े बड़े कामों को फिर उसने देखा। आज अगर हम ईमानदारी से खुदा की हजूरी में रहेंगे और खुदा पर ही अपना ध्यान लगाएंगे और गैर मबूदों के पास ना जाएंगे, तो फिर हमारी जिंदगी में काम होगा और वो हमें कामिल बनाएगा। और दूसरी बात, अगर हम खुदा की हजूरी में रहते हैं तो फिर वो हमें बढ़ाता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 4 लोग थे, आज 40 है। प्रेज़ गॉड। तो जब आप ईमानदारी से खुदा की हजूरी में रहते हैं तो वो 4 से 40 के फिगर को क्रॉस करने में टाइम नहीं लगाता। हालेलुया। वो आपके दुखों को आपसे दूर कर देने में टाइम नहीं लगाता, बल्कि आपको रिहाई बख्शता है। वो आपको आपके दुखों से रिहाई